दुश्मन देश का दुश्मन है, उसका अधिकार सिर्फ उस गोली पे है जो फौजी की या पुलिस की बंदूक में है। All gone to the northern borders. Unfortunately, this particular situation which is developed into Manipur has nothing to do with counterinsurgency or insurgency. It's primarily a clash between two ethnicities. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर वॉइस में आप सभी का स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद के फेर में फंसे हुए हैं। क्या हम परिभाषा तय नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी इस देश के लोगों का खून बहाएगा, जो भी इस देश की अखंडता को चोट पहुंचाएगा, वो आतंकी है। उसे उग्रवादी बोलना, नक्सली बोलना क्या ठीक है? दरअसल इस वक्त मणिपुर में हिंसा चल रही है, कई लोगों की जान जा चुकी है और सेना के ऑपरेशन में 60 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। इसी बीच सीएम बीरेन सिंह, जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया और उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ, मिलिटेंट के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और 40 से ज्यादा मिलिटेंट को खत्म कर दिया गया है। लेकिन उससे ही अगले दिन सीडीएस अनिल चौहान कहते हैं कि वहां पे कोई मिलिटेंसी नहीं है, वहां पे कोई आतंकवाद नहीं है। दो समुदायों के बीच, कुकी और हैताई के बीच जो है वो झगड़ा हो रहा है। ये सीडीएस अनिल चौहान का कहना था। यानी कि प्रदेश के सीएम कुछ कहते हैं, सीडीएस अनिल चौहान कुछ कहते हैं। आप पहले दोनों के बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। Mass combing operations along with the helicopter surveillance has started, and we are trying to find out the culprits, those militants who are attacking the civilians. Manipur situation, you see, when this, I'll connect it with the question which you had earlier asked, the gentleman over there. In 2020, before to 2020, there was army, there was Assam Rifles, all deployed in the state of Manipur for counterinsurgency operations. But since the challenges of the northern borders were far more, we were able to withdraw the army, and the situation we thought had normalized. At least the insurgency part, that had normalized. And we were able to pull out the army units, and they had all gone to the northern borders. Unfortunately, this particular situation which is developed into Manipur has nothing to do with counterinsurgency or insurgency. It's primarily a clash between two ethnicities, and it's a law and order kind of a situation which we are helping the state government. So while we were there to fight insurgency, that level certainly has come down enough to that level which permitted us to actually withdraw the armed forces from there. But right now we are into a different situation altogether, trying to separate out the communities which are, ethnic, because of ethnicity and number of clashes which are happening. We've done an excellent job, Assam Rifles and armed forces, and may have saved a large number of lives. The challenges in Manipur have not gone, they're not disappeared. One way to say, it will take some time actually, but hopefully they should settle down. The state government should be able to do their job with CAPF, etc. And armed forces should be back to looking at the challenge, which we said has not yet disappeared from the northern border. So that's important for us. Thank you. तो दोस्तों, ये थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है कि आप कहते हैं कि जो खून खराबा हो रहा है, जो हिंसा वहां पे हो रही है, AK-47, MI-4 जैसी राइफल से हमारे सैनिकों के ऊपर, अर्धसैनिक बलों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, वो आतंकी नहीं है। ऐसा कैसे मंजूर किया जा सकता है? दरअसल इस देश को नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद की परिभाषा तय करनी होगी। जो इस देश के जवान के ऊपर, जो इस देश के नागरिक के ऊपर गोली चलाए, जो इस देश की अखंडता के ऊपर चोट पहुंचाए, वो सिर्फ आतंकी है और उसके लिए भारतीय सेना की, अर्धसैनिक बलों की गोली तैयार होनी चाहिए। उसे ये नहीं देखना होगा कि ये नक्सली है, ये उग्रवादी है या ये आतंकी है। और हमने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स
मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी से एक चर्चा के दौरान यही बात की कि क्या हम नक्सली, उग्रवादी, आतंकवादी के फेर में फंसे हुए हैं, हम परिभाषा तय नहीं कर पा रहे हैं। तो सर ने जो कहा ना, उसे जब आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सुनिए सर ने क्या कुछ कहा। कि देश के खिलाफ जो भी काम करेगा, चाहे उसका जाति, धर्म, जो डेमोग्राफी, उससे कुछ लेना देना नहीं है। देश का दुश्मन है। उसका अधिकार सिर्फ उस गोली पे है जो फौजी की या पुलिस की बंदूक में है। बहुत सारी इश्यूज में मैं, क्योंकि पॉलिटिक्स पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, अगर आप देखिए कि आज के पॉलिटिक्स में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका अपनी जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ। तो दोस्तों, मणिपुर में 3 मई से हिंसा भड़की हुई है। अभी तक हिंसा पे कंट्रोल नहीं पाया जा सका है और लगातार कह सकते हैं कि नुकसान सरकारी संपत्तियों को पहुंचाया जा रहा, लोगों की जान दी जा रही है और भारतीय सेना के ऑपरेशन में 60 से ज़्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस देश के लिए आतंक, उग्रवाद, नक्सलवाद के लिए एक ही परिभाषा तय करनी होगी कि जो भी इस देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो भी इस देश के आम नागरिकों की जान लेगा, फिर वो जम्मू कश्मीर से हो, पंजाब से हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य से हो, छत्तीसगढ़ से हो, या फिर झारखंड, महाराष्ट्र, कहीं से भी नक्सलवादी हो, वो एक ही है, वो आतंकी है और उसका जवाब सेना और सुरक्षा बलों की गोलियां ही हैं। अगर आप आतंकवाद और उग्रवाद के फेर में आपस में ही उलझे रहेंगे तो ये मुकाबला आसान नहीं होगा। मणिपुर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और उम्मीद ये की जा सकती है कि वहां पर अफस्पा जो है, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वो फिर से लागू होगा और सेना को फिर से वो ताकत मिलेगी जिसके दम पर वो आतंकियों को कुचल सके। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।